الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا محمد یا علی ایک صلوات ارشاد ہو رہا ہے سرکار دو عالم کا یا علی تمہاری محبت جو ہے وہ تقویٰ ہے اور تمہاری محبت جو ہے وہ ایمان ہے. یعنی علی کی محبت جو ہے وہ تقویٰ ہے اور علی کی محبت جو ہے ایمان. حدیث میں ہے کہ جو انسان ساری عمر سجدے میں پڑا رہے اور ساری عمر جتنی بھی حج کرتا رہے, اگر علی کی محبت نہیں ہے تو وہ سارا سارا اللہ جو ہے غافل ہے. شرط ہے علی کی محبت, علی کی ولایت. اور پیغمبر نے خود فرمایا یا علی اگر کائنات کی ہر مخلوق تمہاری محبت پہ جمع ہو جاتی تو خالق کائنات جہنم کو خلق نہ کرتا, جہنم خلق ہی نہ ہوتا. پھر ارشاد فرمایا یا علی تمہارے فضائل اتنے ہیں کہ اگر کائنات کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت جو ہیں قلم بن جائیں اور سارے انسان اور جنات مل کر تمہارے فضائل لکھنا چاہیں تو تمہارے فضائل لکھی نہ سکتے. بے شک. اور ساری عبادتیں علی کی ایک طرف, ایک ضربت علی کی جو ہے وہ عبادتیں ثقلین کے اوپر بھاری, ایک ضربت علی کی. اور پتہ نہیں علی نے کتنی ضربتیں لگائی, جس کی ایک ضربت ہے. اور عزیزوں جب وہ میدان میں آتا ہے تو اس سے کوئی بہادر نظر نہیں آتا ہے, جب وہ سجدے میں آتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی عبادت نظر کرنے والا نظر نہیں آتا. اگر وہ سخاوت پہ آ جاتا ہے تو کائنات میں اس سے بڑا کوئی سخی نظر نہیں آتا ہے. اگر صبر پہ نظر آ جائے, صبر پہ آ جائے تو اس سے بہترین کوئی صابر نظر نہیں آتا ہے کہ گلے میں رسی بھی پھنس جائے پھر بھی تلوار نہ اٹھائے. یہ علی کا صبر. اور دیکھیں قدرت اتنی ہونے کے بعد مولا کائنات نے قمبر کو لیا, اسے کئی طریقے سے بیان کیا گیا. تو مولا کائنات نے قمبر کو لیا اور ایک دکان پہ آئے, کپڑے کی دکان پہ آئے, اور جب کپڑے کی دکان پہ آئے تو کپڑا لیا اور کپڑا لینے کے بعد درزی کے پاس بھیجا اور کہا قمبر جا کے درزی سے کہنا یہ دو لباس ہے. لے کے گئے مولا کائنات, کہا کہ بھائی یہ لباس سل دو, اور یہ ایک اچھی قیمت کا تھا ایک کم قیمت کا تھا. کہا اچھی قیمت والا قمبر کا سل دو اور جو کم قیمت کا تھا وہ میرے لیے سل دو. تو قمبر نے کہا کہ نہیں مولا, آپ آقا ہیں اور ہم غلام ہیں, تو ہمارے اوپر کم قیمت کا لباس اچھا لگے گا اور آپ کے اوپر زیادہ قیمت یا زیادہ جو بہتر وہ لباس اچھا لگے گا. تو مولا کائنات نے کہا قمبر یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ تم جوان ہو اور ہم بوڑھے ہیں, تم جوانوں پہ یہ لباس اچھا لگے گا, اچھا والا لباس اچھا لگے گا, اور ہم بوڑھے ہیں تو لہذا ہم پہ یہ لباس اچھا لگے گا. تو درزی نے کہا کیا کہنا اس کائنات پہ اس علی کا کہ جو نہ یہ نہ پتا چلنے دے کہ کون آقا ہے اور کون غلام ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان جو غلاموں کے ساتھ میں اتنا اس کائنات کے حاکم کو علی کہتے ہیں. علی جیسا عدل کرنے والا ہے نہیں. جناب عقیل نے مولا کائنات کے پاس آئے, جب مولا کائنات کو ظاہرا حکومت ملی تو جناب عقیل آئے, کہا بھائی مجھے اتنے درہم ملتے ہیں, اس میں میرا بھلا نہیں ہوتا ہے, کچھ بڑھا دو. تو علی نے مثلا کوئی مولا کائنات نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو کہا ایسا ہے کہ جب انسان کو کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے تو دعوتیں کرتا ہے. تو جناب عقیل نے پیسے جمع کرنا شروع کیے, جو بیت المال سے جو پیسہ ملتا تھا اس میں پیسے جمع کرنا کرتے رہے. اور پھر ایک دن علی بن ابی طالب کی دعوت کی اور دعوت کرنے میں گئے, کہا میرے بھائی آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر پہ. مولا کائنات گئے تو وہاں دیکھا دسترخوان پہ ہر چیز موجود ہے. مولا کائنات جس نے ساری عمر جو ہے جو کی روٹی کھائی ہو,
जब मौलाए कायनात ने दस्तरखान पे बेहतरीन ग़िज़ाएँ देखी और बेहतरीन खाने देखे, कहा भाई अकील ये कहाँ से आया? कहा जो बैतुल माल से मुझे दिरहम मिलते हैं या दीनार मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं या रुपए मिलते हैं, मैंने उससे 1 रुपया रोज या 2 रुपया रोज कम किया है, उससे आपकी दावत की। अली ने आकर बैतुल माल के दरोगा को हुक्म दिया कि अकील के पैसे को कम कर दिया जाए। कहा वाह वाह कहा ये 2 दिरहम उनके पास रोजाना ज्यादा जाते थे। वाह ये अली के हमारे पास हुकूमत आ जाए तो हम अपने भाइयों को सारी दे देंगे अपने रिश्तेदारों को। अली का जब जनाब अकील कौन? जनाब अकील भाई है, मौलाए कायनात के सगे भाई हैं। कहा भाई आपने मेरी मतलब और मेरे जो वहां पे मिकदार थे उससे आपने कम कर दिया। कहा नहीं ये तुम्हें ज्यादा मिलते थे, अगर ज्यादा ना मिलते होते तो तुम बचाते क्यों? और बचा के और तुम्हें मालूम है कि अली ने कभी बेहतरीन ग़िज़ा खाई नहीं। कहा अगर दौलत देना है तो अमीर शाम के दरबार में चलो। और बात में लिखा भी गया कि गए वहां पर तो अमीर ने कहा कि अली को मसलन ये कहो कि अली जो है मादरना तो कायनात जनाब अकील ने कहा लानत हो तुझ पे और तेरी सल्तनत के ऊपर और तेरी हुकूमत के ऊपर, तेरे माल दौलत के ऊपर। वो माल और दौलत बेकार है जिसमें अली की मोहब्बत की बुनियाद है। वाह सुभान अल्लाह वाह वो जिंदगी ही बेकार है जिसमें अली का मोहब्बत का खमीर ना हो। तो कायनात में उस हाकिम का नाम अली। अगर अली की जिंदगी और देखना तो बस आखिरी वाक़या और जन्नत को करना। मौलाए कायनात का आखिरी मौलाए कायनात हाकिम है। ऐसा हाकिम कायनात में मिलता नहीं है जो गलियों में जाकर बंदों की मिजाज कुर्सी करेगा। उस हाकिम का नाम अली है। हम अपने अंदर वो सिफात पैदा करना चाहिए। देखिए मैं फिर बार बार कहता हूँ जाकिर कोई भी आता है मरीज को या कोई भी इमाम आता है, देखिए वो आलिम नहीं है जो दो को एक ना करते। बेशक आलिम की सिफात ये है कि दो को एक करते। ये नहीं है कि मतलब अपने मफाद के लिए हम दूसरे को बुरा करते रहे, हमें नहीं करना चाहिए। और ना वो कभी किसी के ऊपर बैठ के मिंबर पे बैठ के किसी के ऊपर तंज नहीं करता। लेकिन हाँ पानी का जब रास्ता बंद किया जाता है तो पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। उसे ढूंढना उसे जगह बनाने की जरूरत नहीं है, पानी खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अच्छा अगर हम चोर हैं और अगर चोर का वाकया बयान किया जा रहा है तो अगर हमने चोरी की है तो मतलब उसमें मतलब बुरा मानने की जरूरत ही नहीं, क्यों वो वाकया फिर हमारे ऊपर भी जा रहा है। अगर हमने गीबत की और गीबत का मसलन बयान हो रहा है तो आदमी बुरा न माने कि मसले गीबत की जा रहा है। अगर हमें वो पाई जा रहे तो वो सिफात को हम दूर करें अजीजों, वो खराबी को हमें दूर करना चाहिए, हमें दूर करना चाहिए। अगर हम गीबतें कर रहे हैं तो हमें दूर करना चाहिए, अगर बुराई किसी कर रहे हैं तो हमें दूर करना चाहिए ना। ये नहीं कि उल्टे हम उसके सब पकड़ जाए नहीं। ये अगर हम मौलाए कायनात जैसा हाकिम दूसरे की गलियों में निकले जब तो क्या देखा एक औरत पानी भर के लेके आई और वजन ज्यादा था तो पानी छलक रहा। अली ने कहा लाओ मैं पहुंचा दूं तुम्हारे घर पे। ये अली जो हाकिम था पूरी कायनात का हाकिम था, जाहिरन अली को हुकूमत मिली वरना अली तो कायनात के हाकिम है अजीजों, कायनात के हाकिम है। अब मौलाए कायनात जब वो चलने लगे पानी का घड़ा या जो भी मश्क हो वो ली और लेके चलने लगे तो मौला ने सवाल किया क्या तेरा शौहर नहीं? उसने कहा मेरा शौहर जो है अली के साथ में जंग में मारा गया, अली के साथ जंग में गया था, अली के लश्कर में मारा गया। कहा फिर कहा दो छोटे छोटे बच्चे आज तक अली ने मेरी खबर नहीं ली। और वो किससे कह रही? अली से कह रही, लेकिन अली को पहचानती नहीं। मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ रहे, घर तक मशरक की देखा दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मौलाए कायनात आ गए, कुछ मसलन पैसे का इंतजाम किया दिरहम का और फिर दखल बाग किया, उसके घर गए मसलन आटा वगैरह लेकर या सामान वगैरह लेकर जब मौलाए कायनात उसके घर गए तो औरत से कहा कि तू बच्चे को बहला दे और मैं तंदूर रोशन करूँ, या मैं बच्चों को बहला रहा तो तंदूर रोशन। होता होता मौलाए कायनात अपनी रीशों में जब आग रोशन हो गई तो मौलाए कायनात ने अपनी रीशों मुबारक को पकड़ कर आग की तरफ बढ़ाकर कहा
ये आप जितनी अजियत दे सकते मुझे यहाँ दे ले, लेकिन जहन्नम में मुझे आजकल के आज महबूब मुझे महसूस होता है ये अली ने भी तारीफ है। क्यों अली को पहुंचने में मदद करने में इस औरत की देर हुई है, सिर्फ देर हुई थी, वरना बैतुल माल का हिस्सा जा रहा था। अजीजों, अली ने जब रोटी पकाई और बच्चों को अपने जानू के ऊपर बिठा के खिला रहे थे और कहते जाते थे यतीमों अभी को माफ कर, ऐसा ना हो किसी का हक खा रहे हैं। अल्लाह के बारे में जवाब देना पड़ेगा, हम खा रहे हैं किसी यतीम का, किसी पड़ोसी का। अल्लाह अगर हमें दिया है अल्लाह ने, तो हमें दूसरों पर खर्च करना चाहिए। अल्लाह ने इसीलिए हमें दिया कि हम दूसरों को इनकार करें। एक औरत बढ़कर आ गई वहां पर महल्ले में, वो अली को पहचानती थी। जब अली को इस हालत में देखा, उसने कहा ये तू क्या करे, तुझे पर तो मसला अल्लाह का कहर पड़े, मालूम नहीं है किस जाते मुबारका है। कहा कौन है? कहा यही तो अली ने बिता दी। उसने हाथों में धो दिया, मौला माफ, मैं नहीं जानता कि आप देखो ये अली ने बिता दी। बस कूफे में, मस्जिद कूफा में खुतबा दे रहे थे। एक औरत दरवाजे पे खड़ी हुई खुतबा सुन रही थी। हसन को अली ने बुलाया, कहा हसन इस औरत से जाकर कहो कि मर्दों के मजमे में औरत का आना सही नहीं है। उस औरत ने जाकर कहा हे हसन अपने बाप से कह दो या तो हमें मस्जिद में आने की इजाजत दे दे या हमारे लिए किसी मौलमा का इंतजाम कर दे, किसी मौलमा का इंतजाम करते, कोई बीवी का इंतजाम करते जो हमें दर्श दिया करे। हसन का हाथ पकड़ा, हुसैन का हाथ पकड़ा, कहा बच्चों चलो हमें कुछ तुमसे कहना है। हसन ने कहा, बरातर पूछा बाबा क्या बात कहना, यही कह दीजिए। हुसैन ने कहा बाबा क्या कहना, यही कह दीजिए। तो अली ने फरमाया कि घर में चल के तब बताऊंगा। जब घर के दरवाजे के अंदर आए, फरमाया बात तुम्हारी बहन का नाम बाजारों में लिया जाए, मैं कहूँगा मौला ये आपका जमाना है, हुसैन यही ज़ैनब होगी। फरमाया हसन हुसैन से जाओ मदीने जाओ, ज़ैनब को लेकर आना। जब मेरी बच्चियों को लेके आना तो रात में सफर करना, ज़ैनब का साया जब मदीने पहुंचे हुसैन अपने सारे भाइयों को जमा किया, अब्बास और मोहम्मद नबिया को, दीगर भाइयों को जमा किया, रिश्तेदारों को सबको जमा किया। तो ज़ैनब ने पूछा भैया क्या बात है? हुसैन ने ज़ैनब की तरफ देखा, हसन ने ज़ैनब की तरफ देखा, हुसैन ने ज़ैनब की तरफ देखा, हसन ने हुसैन की तरफ देखा, आंखों में कोई बात नहीं। शहजादी ने पूछा मेरे भाइयों को लाओ क्या बात है? कहा बहन ज़ैनब बाबा ने कूफे बुलाया, कूफे का नाम सुनना था। लेकिन ज़ैनब ने कहा मेरे पास आयो, ये क्यों नहीं गए कि ज़ैनब के बीवी के दिन आ गए, ज़ैनब के उजड़ने के दिन आ गए। मेरा मौला अरे बिस्तर पे है, आजीजों बच्चे रो मिलक रहे हैं। आजीजों जब के काफिला तैयार हसन हो गया, अब्बास काफिला तैयार किया जाए, हम रात में सफर करेंगे। जब शहजादी चलने लगी तो तारीख में लिखा है 18 भाइयों के और मौलाए कायनात ने कहा था कि हसन जब ज़ैनब आए तो काफिला कूफे से पहले रोक देना और मुझे खबर करना कि मैं खुद अपनी बेटी को का इस्तेमाल करूंगा, मैं अपनी बेटी को खुद लेकर आऊंगा। जब ये काफिला चलने लगा तो जनाब अब्बास आगे होते थे, बहुत आगे होते थे, और दुकानों पे कहते थे दुकानों को बंद कर हुसैन की बहन आ रही है, बंद करवा देते थे। आज जब ये काफिला कूफे से पहले
یہ دیکھ لے یہ کوفے کا علی نے ایک دروازہ دکھایا تو زینب نے پوچھا بابا یہ دروازے اور یہ بازار بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں بیٹیوں کو نہیں